Hi guys, welcome to the academy. I hope you guys have been doing absolutely fine. And today is 18th of December 2020, and we would be discussing the current affairs of 17th December 2020. And as you all know that we have been doing these regular classes, and every day we are discussing these current affairs, and they are very extremely important for your Union Public Service Commission and PPSC exams. And I hope you guys have been preparing well for these exams. So please, it is a simple request from my side that do like, share and subscribe to the channel, and then let others know as well that we are doing little hard work over here. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो विल सी द कंटेंट सेक्शन फर्स्ट एंड देन विल गो बैक टू द डिस्कशंस जो हमें करनी है. सो सबसे पहला जो कंटेंट सेक्शन है दैट इज कच्छ रीजन के अंदर वी हैव सर्टेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कमिंग अप because Prime Minister recently visited this area, so there have been this thing. Next is a very important state of education report that is brought by UNESCO. The third is a summit, Griha summit, that has been held. Then you have a recognition scheme for hygiene rating audit agencies, and then USA has imposed sanctions on Turkey over S-400A air defense missile system. India has been recently ranked 131 in 2020 UN Human Development Index. Himgiri was in news, it's extremely important. Vijay Diwas, 16th of December, Vijay Diwas. And then there have been developments on the international front. There is an organization called WTO. That organization WTO is now selecting its Director General. So what are the new challenges for the Director General? The second last topic is about the Indo-Bangladesh agreements, Indo-Bangladesh relations. What are the key issues that are there between India and Bangladesh? And last but not the least, we have the advanced pricing agreements, the APAs, which were in news. So let's start the discussion. सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है हमारे देश के गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और वो कहाँ पे हो रहे हैं ये आपको इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहले ये है कि हमारे देश के अंदर एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो लग रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क. देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारे पास मतलब वो रिन्यू कर सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होती. जैसे हमारा कोल है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन सन है, विंड है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आती हैं. हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जहाँ पे आप सोलर और विंड दोनों को मिला के एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो अभी रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ डेवलपमेंट इन कच्छ दैट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा वो सेट किया जा रहा है. इट्स वेरी क्लोज टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड वो है सेटिंग हो रही है उसकी खावड़ा विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और इट विल प्रोड्यूस अराउंड 30 गीगावाट सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि दोनों करेगा. तभी इसको हम हाइब्रिड एनर्जी बोलते हैं बिकॉज हाइब्रिड के अंदर हम सोलर और विंड दोनों को इंक्लूड करते हैं. इसके अलावा एक डीसैलिनेशन प्लांट भी वहाँ पे लगाने की बात चल रही है. डीसैलिनेशन प्लांट का काम होता है बेसिकली टू प्रोवाइड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू द पॉपुलेशन ऑफ द नियर बाई एरियाज. तो वहाँ पे 8 लाख की पॉपुलेशन है जहाँ जिसमें 300 विलेजेस आते हैं. तो उन सब लोगों को ये पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिलेगा. The next important news is with respect to the state of education report for India, जो कि vocational जिन्होंने बोला है कि vocational education is first, and this report is brought by UNESCO, extremely important, and this was launched virtually. तो virtually इसको launch किया गया and it was a second edition, remember that second edition है of this report. तो इस report में ये बोला गया है कि India has been doing very well in terms of creating skilled workforce for the nation. And according to the National Skill Development Policy जो entrepreneurship जो 2015 में रिलीज़ की गई थी उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला था कि हम ऑलमोस्ट बाय 2022 हम 110 मिलियन पीपल को स्किल दे देंगे इंडिया में. और प्रेजेंटली 10 मिलियन यूथ्स को ये स्किल ऑलरेडी दे चुके हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ प्रेजेंटली ट्रेनिंग 10 मिलियन यूथ एनुअली. इसके अलावा द रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड सर्टन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस. That's very very important. For example, they have talked about that it's important that learners and their aspirations should be at the center of the vocational education and training programs, and a very important ecosystem is required for teachers, trainers and assessors. अपस्किलिंग चाहिए, फोकस करना चाहिए. अपस्किलिंग के ऊपर कहने का मतलब है कि इफ़ यू हैव बिन गिवन अ स्किल एंड स्किल्स आर ऑब्वियसली बात है इट्स
इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्किल्स जो आपको मिलते हैं एक टाइम में मिलते हैं, लेकिन उसको दोबारा से चेंज करना पड़ता है. सो अप स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, री स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें मैसिवली आपको एक्सपैंड करना है, डिजिटाइजेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को मैसिव एक्सपेंशन करनी है. एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़ जो कि जनरेट कर सकते हैं लाइवलीहुड्स बाय एंगेजिंग इन प्रिजर्वेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जैसे पता है कि हमारे देश के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2030 में है, तो उसको भी हमें इन पर्टिकुलर स्किल्स के साथ अलाइन करना है जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात चलती है. लेट्स गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइज. थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो है गृहा रेटिंग्स के बारे में. पहले तो गृहा रेटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. देखिए, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और क्लाइमेट चेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न बनती हैं. इन सोर्सेज में आपका ऑटोमोबाइल, आपकी इंडस्ट्रीज़, आपका एग्रीकल्चर, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जो क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी बिल्डिंग्स हैं. और बिल्डिंग्स दे समटाइम्स दे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट टू 39%. ये देखिए डेटा लिखा है वर्ल्ड ग्रीन काउंसिल डेटा के अकॉर्डिंगली कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑलमोस्ट 39% ऑफ जो एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती है. तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो ग्रीन बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए रेटिंग्स देनी बहुत ज़रूरी है. ऐसी रेटिंग्स जो कि बताएंगी कि ये जो बिल्डिंग है ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करती है. सो ग्रीन गृह इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंडियाज़ ओन ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम जो कि बिल्डिंग्स को रेट करती है कि वेदर दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कंप्लाइंट और नॉट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब अकॉर्डिंग टू दिस है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डीकार्बनाइजेशन ऑफ बिल्ड एनवायरनमेंट जो है वो उसके ऊपर फोकस करें. और गृहा जो है वो उसको जो ऑर्गेनाइज कर, ये समिट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद. और इसकी जो थीम है उसको आप याद रखना है, इट इज़ रीजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट. सो रीजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट is about the scheme का जो है पूरा का पूरा प्रोसेस. So let's go to the next important topic guys, hygiene rating audit agencies के बारे में. hygiene rating audit agencies. देखिए, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के अंदर जो फूड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग, यानी कि रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर कुछ होटल्स हो गए, ढाबास हो गए, तो ये जो होते हैं ये या तो आपको वहाँ पे बैठ के खाना जो है वो सर्व करते हैं या फिर आपको जो होम डिलीवरी सर्विसेज देते हैं. तो ऐसे रेस्टोरेंट्स ढाबास के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक हाइजीन रेटिंग आनी चाहिए जिसके अंदर इनको 1 से 5 स्टार की जो है वो रेटिंग मिलनी चाहिए. इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज जो है वो बनाई जा रही हैं. और इसको बनाने के लिए कौन कर रहा है काम? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वो ऐसी हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज को जो है वो बेसिकली अप्रूव करने का वहाँ पे प्लान चल रहा है. और ऐसी हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज जो हैं अल्टीमेटली दे विल मेक श्योर कि वो जो भी फूड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको रेट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पे फूड हाइजीन और सेफ्टी का कितना इंपॉर्टेंट ध्यान जो है वो रखा जाता है. तो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करते हैं. तो वो जो सर्टिफिकेट आपको देंगे वो सर्टिफिकेट आप अपने डिस्प्ले कर सकते हो अपने कंज्यूमर फेसिंग एरिया में. तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक जॉइंट एफर्ट है. सो इट्स नॉट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ जॉइंट एफर्ट. और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है और कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे एसोचैम, CII, FICCI, ये सारे इन्वॉल्व हैं. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइस. यूएस ने अभी टर्की के ऊपर कुछ सैंक्शंस इंपोज किए हैं क्योंकि टर्की ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया से जो है वो परचेज किया था. ये सेम S-400 डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया ने भी रशिया से जो है वो परचेज किया है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप इसको इमेज आप देखते हैं तो ये इमेज है उस पूरे सिस्टम की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है. तो अगर हम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि सपोज करो कोई एनिमी कंट्री आपके ऊपर अटैक करती है और कोई एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करती है. फॉर एग्जांपल कोई मिसाइल या कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी कंट्री के इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स को अफेक्ट करने की कोशिश करती है. तो हमारी कंट्री में ऐसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम होने चाहिए जो ऐसे एयर स्ट्राइक्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकें. तो ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये मोबाइल लॉन्चर है. तो इसके अंदर एक टाइम पे 6 जो है अल्टीमेटली 6 टारगेट्स को एक टाइम पे एंगेज कर सकते हैं. सो ये देखो लिखा है एंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली, विच मीन्स अगर वहाँ से 6 टारगेट्स आ रहे हैं तो एक टाइम पे इन 6 टारगेट्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. इसके अंदर ये ऑलमोस्ट 100 एयरबोर्न टारगेट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं बिकॉज इसमें ट्रैकिंग सिस्टम्स लगे हैं. जैसे मल्टी फंक्शन रडार की अवेलेबिलिटी है, ऑटोनोमस डिटेक्शन है, विच मीन्स कि आप अगर नहीं भी काम कर रहे हैं तो तभी भी इसके अंदर जो है वो काम चल रहा है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली जो है ये
पूरा का पूरा जो सिस्टम है, और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्चर्स, कमांड्स एंड कंट्रोल सेंटर, ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है। इट इज़ केपेबल ऑफ फायरिंग 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल, क्रिएटिंग अ लेयर्ड डिफेंस। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइस। यूएन की अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वो एक ड्रॉप हो चुका है, विच मीन्स नाउ इट हैज़ बीन रैंक टू 131 अमंग द 189 कंट्रीज। और HDI वैल्यू जो है वो 0.645 है, जिसने इंडिया को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में प्लेस कर दिया है। 2018 के अंदर ये रैंक जो था वो 130 था, यानी कि 2 साल बाद ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आती है, और उसके अंदर अब इंडिया का रैंक जो है वो काफ़ी पीछे जा चुका है। अगर हम की टेकअवेज की बात करते हैं तो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69.7 ईयर्स हो चुका है, विच इज़ बेटर देन पाकिस्तान बट वर्स देन बांग्लादेश विच इज़ 72.6 ईयर्स। और उसके अलावा हमारी टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, एज़ यूजुअल नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हांगकॉन्ग एंड आइसलैंड। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम इंडिया की काफ़ी फेल हुई है, $6,681 पर जो पर्सन है, जो कि $6,829 से रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं हिमगिरी। देखिए हिमगिरी जो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, और ये बेसिकली एक शिप्स हम बना रहे हैं अंडर अ प्रोजेक्ट कॉल 17A प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर शिप्स बना रहे हैं, और वो शिप्स को बनाने वाली जो कंपनी है वो हमारी कोलकाता की बहुत फेमस कंपनी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसको लॉन्च किया गया है 14 दिसंबर 2020, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 7 शिप्स हम बना रहे हैं, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टेल्थ फीचर्स होंगे, यानी कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव जो है फीचर्स होंगे और इंडिजीनियस वेपन्स होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली है। विजय दिवस हर साल हम 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द विक्ट्री ओवर द पाकिस्तान इन 1971 वॉर, एंड डेफिनेटली विच इज़ फेमसली कॉल्ड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस है कि कुछ नए चैलेंजेस जो WTO DG डायरेक्टर जनरल जो आजकल न्यूज़ में है कि नए डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट करने की प्लानिंग चल रही है, और उसमें विमेन जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जो है अल्टीमेटली डायरेक्टर जनरल बन सके। तो उनके सामने क्या क्या इश्यूज़ हैं WTO को लेके। देखिए WTO का ओवरऑल जो फ्यूचर है वही एट स्टेक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम कॉम्पिटिशन है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नेशंस के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, तो वो जब ट्रेड डील्स करते हैं तो उन ट्रेड डील्स में उनकी कभी अग्रीमेंट नहीं होती। धीरे धीरे करके ये भी देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एक नेशनलिज्म की वेव चल रही है, जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाता है, क्योंकि नेशनल इंपेरेटिव्स जो है वो ग्लोबल कंसर्न से ऊपर हो जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोविड-19 की पैंडमिक का इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है ट्रेड के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर। तो WTO के पास ये भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है कि कैसे जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है कोविड-19 से, उसको कैसे मैनेज किया जाए। फिर आपको पता है कि दोहा राउंड हुआ था WTO का, उसके अंदर नॉर्थ जो इन द सेंस जो डेवलप नेशंस और डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके बीच में जो है वो अग्रीमेंट्स नहीं हो पाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कैसे करके हम जो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवाइड है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, और वो सारी चीज़ें। फिर WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को कैसे रिवाइव किया जाए, बिकॉज जनरली ये देखा गया है कि दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इज़ अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी देखना है कि कैसे सप्लाई चेन्स रोबस्ट हों दुनिया की, है ना। और लास्ट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वैक्सीन नेशनलिज्म, डेवलप नेशंस वैक्सीन ले रही हैं कोरोना वायरस की, और IPR जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजेम, जो वैक्सीन की कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं, और जो पुअर लोग हैं उनको ये वैक्सीन की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल सकती। तो इसको कैसे करके मैनेज करना है, तो ये सारी कुछ मेजर चैलेंजेस है जो नए WTO के DG के ऊपर। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस के बारे में ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है। इसका बेसिकली कंटेक्स्ट ये है क्योंकि 1971 की 16 दिसंबर को हमारा विजय दिवस होता है, बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था। तो उसके बेसिस के ऊपर ये थोड़ा सा एक किसी बंदे ने आर्टिकल जो है वो लिखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग डेटा है कि बांग्लादेश हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया साउथ एशिया, एंड इनफैक्ट इंडिया जो है उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया के फेवर में, एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 164.4% टू द ट्यून, विच मीन्स कि जो चाइना इंडिया के लिए वो इंडिया बांग्लादेश के लिए है ना। सो ऐसे आप समझ सकते हैं। और इंडिया टू बांग्लादेश FDI बहुत ज़्यादा जाती है, जिसके अंदर आप लगा के चलो कि रिलायंस ने काफ़ी बड़े
प्रोजेक्ट्स किए हैं, अदानी ने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं बांग्लादेश के अंदर, और इंडिया एंड बांग्लादेश आज बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। और रिसेंट अग्रीमेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो मोंगला पोर्ट जो है वहाँ से जो गुड्स एंड ट्रांजिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे आपको पता है कि बॉर्डर जो है वो सेंसिटिव है, हमारे देश का पोरस है बॉर्डर, और इस पोरस बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं और फिर उनको मार दिया जाता है। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पानी का इशू अभी भी पेंडिंग है, टिस्टा वाटर के ऊपर अभी भी अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा दोनों देशों के अंदर। और इंडिया ने जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ जाता है। लास्टली बांग्लादेश का चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होते जा रहे हैं। इनफैक्ट है ना, बांग्लादेश चाइना का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है, विच मीन्स के सबसे ज़्यादा आर्म्स जो हैं बांग्लादेश को मिलते हैं। और चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश की सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर भी चाइनीज़ फर्म्स आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस वजह से बांग्लादेश के साथ कुछ हमारे पॉजिटिव्स भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, और ये नेगेटिव्स हमें किसी तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से इनको मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक जो है आज की क्लास का वो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बिजनेसेस और ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो उनकी लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करता है। तो कई बार क्या होता है, इनकी लायबिलिटीज़ और जो रिटर्न फाइल होते हैं उसके अंदर मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस जो है भेजता है कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट्स को। तो इसमें ये रहता है कि जो कंपनीज होती हैं वो जो टोटल प्रॉफिट दिखाती हैं अपना, वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखाती, बिकॉज वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती हैं बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट आर्टिफिशियली। तो वो आर्टिफिशियली कॉस्ट को इन्फ्लेट करके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से ये टैक्स लायबिलिटी उनकी कम हो जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इन्होंने आर्टिफिशियली कॉस्ट को इन्फ्लेट करके प्रॉफिट को कम दिखाया है, तो वो नोटिस भेजता है, जिसकी वजह से दोनों में डिस्प्यूट आ जाते हैं और फाइनली फिर वो डिस्प्यूट जो है कोर्ट्स में जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है इवन फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट और फॉर द कंपनीज एज वेल। तो इस चीज़ के लिए इंश्योर किया गया कि कॉर्पोरेट्स और जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, जो मेजर कॉर्पोरेट्स हैं, ये पहले से ही प्राइसिंग अग्रीमेंट्स कर लें, जिसके अंदर ये कॉर्पोरेट्स जो है वो डिपार्टमेंट को बता दें कि ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, तो बेसिकली ये हमारा टैक्स लायबिलिटी होगी। और अगर उस एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट को जो है वो डिपार्टमेंट मान जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट मान जाता है, तो दोनों के बीच में फर्दर कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, तो दोनों जो है वो खुश रहेंगे। सो दैट इज़ अ बेसिकली आइडिया। तो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट दिखाई जा रही है बाय द कंपनीज टू रिड्यूस द प्रॉफिट वो मिनिमम हो, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा भरा जाए, और डिपार्टमेंट जो है उनको भी एक सस्टेनेबल, एक स्टेबल जो है वो रेवेन्यू का एक रजीम जो है वो शुरू हो जाए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर भी प्रोएक्टिव हो जाता है और कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसके ऑडिट वगैरह वो सारी चीज़ें उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर कम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली डिस्प्यूट्स एंड ये सारी चीज़ों के बीच में नहीं जा रही। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा उस लोकेशन पर जाने की विजिट करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी एडवांस प्राइस अग्रीमेंट जो है वो इन प्लेस हो। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन एडवर्सरियल टैक्स रजीम का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर कि जहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट्स दोनों मिलके आपस में डिफाइन कर देते हैं कि भाई ऐसे करके हम जो टैक्स है वो पे करेंगे। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है अल्टीमेटली आज के करंट अफेयर्स हैं, जो इनमें से आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सो आपको हिमाद्री के बारे में पता होना चाहिए, आपको S400A के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली हाइजीन रेटिंग एजेंसी और FSSAI के बारे में पता होना चाहिए, गृहा के बारे में आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, इंडिया का जो UN डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर HDI रैंक आया है उसका नॉलेज आपको जो है वो बिल्कुल पता होनी चाहिए। और फाइनली जो है आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कच्छ रीजन में ले रहे हैं और लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वहाँ पे बन रहा है, उसकी नॉलेज आपको क्लियरली जो है वो होनी चाहिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आज आपकी करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम जो है ये करंट अफेयर्स और इसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एंड टेक केयर गाइस।